that lockdown is difficult, but यहाँ पे तो हम अपनों के साथ लॉकडाउन में थे, so that was still okay. So yeah, it has taught me a lot of things. Yeah, but most importantly, it has calmed me down. I was offered a lot of work, but कुछ चीजें नहीं समझ में आई. Like, you know, personally, I had. It's not that I didn't have the project. मतलब ऐसा भी हो गया था कि साइन करने से पहले no, whether I really want to do this or I don't want. मैंने पियानो बजाना शुरू किया था. I started playing the Casio, and I was really enjoying that. तो वो मैंने मतलब बजाया नहीं था, हमेशा रखा हुआ था. But I was like, नहीं यार, I should try and learn something new. You tell me, how has been lockdown for you? क्या आप बहुत परेशान हुई या आपने you indulged in self love और आपने अपना ख्याल रखा और बहुत मजे किए? नहीं, मुझे तो it was pretty nice for me. Of course, बीच में थोड़े frustration हो जाते हैं that, you know, I want to get out और कुछ करना है and all that. But I think overall it was a good experience, and I think बहुत सारी चीजें समझ में आई है. More than learning things, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में बहुत कुछ समझने मिला है. Because this is the time where you actually spend so much time with your family, yourself. Because आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे और आप कितना ही टीवी देख लोगे या कितना ही फोन पे बात कर लोगे. So you got, मतलब I especially got to know so much about myself and the people around me, and which of the people really matter and you know who don't. बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आई है. तो मैंने कल भी कुछ पोस्ट किया था that actually this year has been like an eye opener in terms of हम जिन लोगों के आसपास सराउंडेड है, कौन कितना एक्चुअली लाइफ में वैल्यू रखता है और कौन नहीं रखता है. यू नो, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे ही भरे पड़े हैं लाइफ में, नो, व्हिच क्रिएट नो वैल्यू इन योर लाइफ, and some people even by not being there means so much to you is what I mean. So yeah, this year actually has been good, I would say, in terms of understanding things like that. Right. You know, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ज्यादातर हम लोगों का, काफी लोगों का टाइम सोशल मीडिया या फिर बिंज वॉचिंग में गया है. आपने कैसा अपना टाइम स्पेंड किया? घर के काम सबसे पहले. आई वुड रियली लाइक टू से, आज अभी तक मेरे घर पे हाउस हेल्प नहीं है. सो अभी भी काफी टाइम घर के कामों में निकलता है. एंड देन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया एंड वॉचिंग समथिंग ऑन द टीवी, लाइक अ सीरीज or something. That's even the routine right now. But yeah, something that has been added is I go out for walks, because पहले तो वो भी बंद था. अब तो इनफैक्ट ज्यादा डेंजरस है, बट थोड़ा बहुत आई थिंक थोड़ा मास्क पहन के स्लो वॉकिंग, थोड़ा सा जब लोग नहीं है आसपास, थोड़ा मास्क उतार के थोड़ा वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो भी. यही ऐड हुई है. अदरवाइज आई थिंक एवरीथिंग इज द सेम. और अभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम घर के कामों में और टीवी देखने में जाता है, एंड सोशल मीडिया. आई थिंक दीज आर द ओनली 3 थिंग्स जिसमें टाइम बीतता है. Okay, a lot of fans, especially सारा गुरपाल के fan pages से बहुत messages आ रहे हैं that what do you want to say about her? She's a very good singer, yaar. I was so impressed looking at her in the premiere, because she sings. She's a good-looking girl and she sings really well. Of course, show में ज़्यादा कुछ किया नहीं है अब तक. तो in terms of the game, I can't really comment. It's too soon to comment on how she's playing and what she's doing in the game. But premiere से तो I was really impressed. You know, she looks good, she sings well, so I hope she plays the game well. कोई आपको ओवर कॉन्फिडेंट लगा थोड़ा, सृष्टि? मुझे निशान थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट लगा. Yeah, I thought him a little over confident. But you never know, maybe that's him, and we'll get to see what that confidence is all about in the task and everything. So maybe he's really good and he plays well. So we'll get to know. Okay. जैसे मैंने सोशल मीडिया के बारे में पूछा मैंने, तो सोशल मीडिया के अपने प्रोज हैं लेकिन कॉन्स भी हैं. लाइक विदाउट अ रीजन सबके पास जजमेंट होता है और हर कोई सोचता है कि मैं सामने वाले को जज करके कुछ भी लिख सकता हूँ. ट्रोलिंग एंड अब्यूजिंग एंड स्पेशली पासिंग मीन कमेंट्स अबाउट फीमेल एक्टर्स या किसी के बारे में भी. So how do you see at social media? Firstly, who are these people? If they are somebody and they are talking something like that, ना, I would still consider. But ना उनका खुद का एक पहचान तो छोड़ो, ना उनका खुद का डीपी होता है, ना असली नाम होता है.
और वो बैठ जाते हैं दूसरों को ट्रोल करने में। पहले खुद तो कुछ कर लो। अ पर्सन हु हैज struggled in life or worked in life now would never try to demean others is what I feel, because that person would know what hard work is. So I think इन लोगों का लाइफ में खुद में ही कुछ स्टैंड नहीं होता है कि ये दूसरों को बस खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, like in terms of trolling and all that I'm talking about. So these people are just useless. But how do you deal with, अगर कभी ऐसा हुआ है या हुआ होगा तो how have you dealt? I totally ignore. I don't even entertain. मतलब अगर कोई बुरा कमेंट आता है तो मैं entertain में रिप्लाई करने की भी नहीं सोचती हूँ कि यार मैं इसको क्यों ही रिप्लाई करूँ, like you know that person would just might do it for attention. Right. So I don't think that person should get even a little attention. और अगर किसी को बहुत ज्यादा bother हो रहा है तो ब्लॉक कर दो. Like you always have an option of blocking. अगर वो इंसान इतना डेस्परेट होगा वो वापस आईडी बना के वापस आपको करने की कोशिश करेगा तो ब्लॉक कर दो। फिर आपका तो एक ब्लॉक का बटन जा रहा है, उस इंसान को कितना रजिस्टर करना पड़ता होगा, ईमेल आईडी रजिस्टर करो, आईडी बनाओ, तो मैंने तो फिर भी सीखी है फॉर नथिंग। So I will have to just keep a block button, but that person has to work harder to troll me or you know anyone for that matter. Right, true. Also, you know, talking about अभी पैंडेमिक चल रहा है लेकिन लॉकडाउन खत्म हुआ है एंड इंडस्ट्री है इज बैक इन एक्शन, काम शुरू हुआ है। ऐसे में यू नो हैव यू थॉट अबाउट गोइंग बैक टू वर्क? किस तरीके से मतलब आप अपना फ्यूचर देख रही हैं? मैं ऑनेस्टली अभी भी थोड़ा सा पैरानॉइड हूँ। मुझे भी अभी भी लोगों को थोड़ा मिलने में यू नो हिचकिचाहट होती है। right. अभी भी नहीं मिलना है, काफी फ्रेंड्स को भी मैं नहीं मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, बट इट्स गेटिंग बेटर ऑफ कोर्स। बट वो फियर है, दैट फियर इज नॉट गॉन अवे एंड इट्स गेटिंग बेटर। आई होप थोड़ा और जल्दी, पता नहीं मुझे मैं कैसे रिएक्ट करूंगी इफ आई हैव टू गो ऑन अ सेट, बिकॉज़ मैं इतने टाइम से आई हैव नॉट इंटरैक्टेड विद सो मेनी ऑल ऑफ अस राइट क्राउडेड प्लेस पे से जाना, आई डोंट नो हाउ दैट वुड बी। राइट सृष्टि, यू नो अभी काफी सारा कंटेंट और काफी सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग। टीवी में भी काफी ऐसे शोज आ रहे हैं जहाँ पे यू नो फीमेल प्रोटैगनिस्ट को बहुत अच्छे रोल्स ऑफर हो रहे हैं, अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं। क्या इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद आपको अब लगता है कि एक टाइम आ गया दैट यू नो यू जस्ट डोंट टेक अप प्रोजेक्ट्स फॉर द हेक ऑफ इट? क्या आप थॉट डालते हो कि यू नो दिस रोल शुड बी? एज एन एक्टर यू वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स। आप भी बोर हो जाते हो ना एक चीज करते करते, आपको भी चाहिए कि कुछ अलग एक्सटेंड। हम रियल लाइफ में एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हम एक कपड़े में तो पूरी लाइफ नहीं बिता, हमको चेंज चाहिए होता है फॉर आवर सेल्व्स आल्सो। So similarly when you do a particular character you feel like doing different things and you feel like exploring new things about yourself कि मैं मेरी capability क्या है, मैं और क्या कर सकती हूँ। So मेरा भी मन करता है कि कुछ अलग करो and I think web is a very cool platform in today's time. Right. They're coming up with some really good content where people are getting to see and experiment another side of themselves. True. So yes, I feel it's pretty good and मुझे भी I would really like to explore a different side. But sometimes does it also create a kind of pressure या फिर you know insecurity कि what if I keep rejecting projects after projects, क्या मेरे पास आगे काम आएगा और अच्छा काम आएगा? No, honestly मुझे अब तक ऐसा नहीं फील हुआ है, क्योंकि जो टचवुड अब तक हुआ है अच्छा ही हुआ है एंड आई फील आगे भी, क्योंकि मैं अपनी चॉइस से कर रही हूँ। अगर आगे मुझे काम नहीं भी मिलता तो मैं अपने आप को ही ब्लेम करूंगी और किसी और को नहीं करूंगी, बिकॉज मैंने अपनी मर्जी से ही जो भी चूज किया है अपनी मर्जी से ही किया है एंड या आई डोंट थिंक आई एम अंडर प्रेशर ऑफ एनीथिंग। You're not under pressure of anything. But what type of you know work you want to do right now? क्योंकि काफी सारे अच्छे शोज आ रहे हैं, वेब पे भी, टीवी भी इनफैक्ट थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लगा है। जो एक दौर चला था that everyone was copying, कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया है, चेंज आया है। What do you want to say? अभी आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क, पता नहीं, वो डिपेंड करता है कि यू नो क्या आ रहा है, बिकॉज आई वाज ऑफर्ड अ लॉट ऑफ वर्क बट कुछ चीजें नहीं समझ में आई, लाइक यू नो पर्सनली आई हैड, इट्स नॉट दैट आई डिडंट हैव द प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा भी हो गया था मुझे साइन करने से पहले से नो वेदर आई रियली वांट टू डू दिस और आई डोंट वांट टू, एंड व्हेन आई डिडंट वांट टू आई सेड आई डोंट वांट टू। सो मुझे रिग्रेट नहीं है एंड आई विल नॉट नेम दैट शो, बट मुझे रिग्रेट नहीं है और मैंने ही आई ओनली सेड दैट आई डोंट वांट टू डू इट।
बट इट्स नॉट इवन अबाउट कि कुछ ऐसे आप अलग से वेट कर रहे हो जब तक नहीं आएगा नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम ओपन टू वर्क, बट समथिंग आई रियली वांट टू डू. मतलब अगर मुझे कोई सेम टाइप का कुछ करने बोल रहा है तो आई डोंट थिंक, बट बहुत सारी अलग चीजें आजकल हो रही है, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग रियली नाइस. Okay. I will take few fans question. First one is 9330 Pooja, who wants to know about your bond with Rubina. Pooja, my bond with Rubina goes way back. It's actually been 9 years that we've known each other, and she's family. She's not even, I don't even count her in a friend. She is a family, and we are really close, and I don't know what to talk about a bond with her, because वो घर की बात है. Like we are really very close, and you will get to know about our bond when you see me supporting her. Maybe I think most of the people who have known me and her have known about our bond, so I don't have much to talk about our bond as such, but yeah, people do know about what kind of a rapport we share. Another question is, what is your favorite color? My favorite color? I'm really loving pastels nowadays, but पहले पिंक था, अभी पिंक से थोड़ा व्हाइट पे शिफ्ट हो गया, so I'm pink and white. Yeah. Okay. Reva wants to know, if you meet a genie, what are the first 3 wish that you would like to have? Stay fit. I think that's the most important thing, because I have a terrible migraine, और मुझे पता है माइग्रेन ना बड़ा इरिटेटिंग होता है, तो सबसे पहले तो I would ask the genie to remove my migraine, because it really troubles me. So first is health for my family and myself, and peace and happiness. बाकी अगर ये सब होगा तो फिर पैसे काम ये सब हम कमा लेंगे. Okay. What is the reason that you joined the television industry? Umi Salma wants to know. I've been seeing my dad बचपन से. He's a cinematographer. I've been going with him on shootings and everything. और मैं देखती थी बचपन से. पापा obviously behind the camera होते थे, but मैं सारे actors को देखती थी और मुझे बड़ा मजा आता था, the whole like मुझे लगता है एक टाइम पे सबको ऐसे बोलता है हमको एक्टर बनना, तो मैंने भी वो बचपन से ही ठान लिया था जब मैं जाती थी, और मैं तो क्लोजली एक्सपीरियंस किया था. So तब से फिर एक्टर बनना ही था, and that's why I decided to act. Okay. What makes you glow so much? Jay Nanditi wants to know. I thank you first of all, because you find me very glowing, but it's just that I try to be happy. Like I try to find happiness in whatever I can, and just try to live that. Okay. One of the fans wants to know, what is the strength of Rubina and Abhinav according to you? What are their strengths basically? So I feel they both are very intelligent. They have a lot of knowledge. They travel a lot, they read a lot, they explore a lot. So knowledge is, I think, their biggest strength. तो उन दोनों बहुत intelligent है, तो दिमाग वाले टास्क तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह ही खेलेंगे. And physical में भी I think they do pretty good, because Rubina practices yoga and stuff, and Abhinav is also pretty fit. So physical and mental both are their strength. यार दोनों उनके बहुत अच्छे strength है. लॉकडाउन में लोगों ने बहुत सारी हॉबीज को अपने फिर से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना शुरू किया. एनीथिंग दैट सृष्टि, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि कोई हैबिट या हॉबी छूट गई थी एंड लॉकडाउन का फायदा आपने उठाया? डांस तो मैं हमेशा से ही करते आ रही हूँ, सबको पता ही है. आई लव डांसिंग, एंड आई ऑब्वियसली डांस इन द लॉकडाउन एज वेल. घर पे भी मैं डांस करती थी, बट अदरवाइज मैंने पियानो बजाना शुरू किया था. आई स्टार्टेड प्लेइंग द कैशियो, and I was really enjoying that. So वो मैंने मतलब बजाया नहीं था, हमेशा रखा हुआ था, but I was like नहीं यार, I should try and learn something new. So that's one of the thing I started. I was reading also, because
मैं बुक्स नहीं रीड करती, बट मुझे स्टार्टिंग ऑफ द लॉकडाउन एक्चुअली थैंक्स टू रुबीना, उसने मुझे बहुत सारी बुक्स दी थी, क्योंकि मैं जब बहुत बोर हो रही थी और लॉकडाउन था, एंड आई यूज्ड टू टेल हर दैट यार मुझे बोर हो रहा है, आई हैव नथिंग टू डू, आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ seeing the TV all the time, so what am I supposed to do? She's like, why don't you read? I said, yeah, but I don't have books, and अभी मैं ऑर्डर करने की भी पेशेंस नहीं है, because ऑर्डर भी तभी स्टार्टिंग में तो ऑर्डर्स भी यू नो ऑनलाइन आप ऑर्डर नहीं कर पाते थे, बट फिर मैंने एक दिन फाइनली जब थोड़ा ओके हो गया था, मैं रुबीना स्टेज वेरी क्लोज में आउट, तो उसने मुझे थोड़ी सी बुक्स पकड़ाई थी, एंड शी लाइक आई एम गिविंग यू these but you make it a point that you're reading, और ये ऐसे शोपीस की तरह पड़ी हुई नहीं है, you know, in some corner of the house. I said no. So I started reading as well. So I was reading, I was playing the castle, and I was dancing, and I was cooking. Of course, how can I forget? मैंने baking try किया था. I tried to bake cakes. और मुझे इतना वो लग रही थी मैं उस टाइम पे, ऐसे नहीं यार अभी तो मैं बिजनेस शुरू कर सकती हूँ केक का, पर ऑब्वियसली वो सिर्फ बोलने की बात होती है, क्योंकि 3 बार के बाद मेरा केक भी अच्छा नहीं बन रहा था, and I dropped the idea of baking. So yeah, but it was fun, you know, बहुत सारी चीजें अपने आप के लिए भी मैंने की, and that was fun. You know, आपकी और करणवीर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखकर आती है, मतलब बिग बॉस के पहले भी क्या ये बॉन्डिंग थी, या बिग बॉस के बाद ज्यादा गहरी हुई है दोस्ती? एक्चुअली मैं कभी केवी को मिली, मैंने कब वही तो बोला ना कि अगर कुछ भी बॉन्ड होता पहले तो दिख जाता ना। हाँ, so स्टार्टिंग में भी हमारी बॉन्डिंग घर में नहीं हुई, वो भी बाद में। आई विश we would have met outside the house. I think it would have been better inside the house. But हाँ, केवी के साथ मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग हुई इन द हाउस, ऑफ कोर्स। उससे पहले हम एक बार मिले थे, बट इंटरव्यूज नहीं हुए थे एक दूसरे से। लाइक वी वर इन द सेम स्पेस, बट वी डिडंट नो ईच अदर, राइट? सो या, दैट वाज ओके। आई एम फरीदा बेगम काफी देर से मैसेज कर रही है, वन वर्ड अबाउट सुरभि ज्योति। He is very real. मैंने पहले भी किसी ने मुझे पूछा था मेरे उसमें जब मैंने क्वेश्चन आंसर्स किए थे तभी, I think she's very real, she's very straightforward, and I really like that about her. अगर उसको कोई पसंद नहीं है तो वो उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करेगी उसको उस इंसान को खुश करने के लिए. Like she would just talk to people who she thinks she can talk to. She would not entertain anyone. कि हम करते हैं ना कि यार इसको बुरा ना लगे तो हम you know बातें कर रहे थे. She's very straightforward. चाहिए नहीं तो नहीं चाहिए. Like so, I really like this about her. So I find her very real. Okay. Someone wants to know about your skincare routine. My skincare routine. Have you tried different things during the lockdown? क्योंकि इतना सारा टाइम था वो घर के नुस्खे. You know, I don't. फिलहाल मुझे कुछ masks and all आए हैं, so I've been trying on them. But otherwise, I'm more of a घर का, you know, घर की चीजें मैं try कर रही थी. But फिलहाल I've been experimenting on some new products on my face and I'm enjoying them. But otherwise, as such कोई routine नहीं है. मैं most of the mask use करती हूँ. Like if I have to बाहर से कुछ use करना है तो I really like trying the masks. सृष्टि, you know, हमने अभी recently देखा आपने अपने डैड का भी बर्थडे कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया, and you know, तो क्या ये लॉकडाउन का समय एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहा? वैसे बर्थडे हमेशा से अच्छी तरह होते थे सेलिब्रेट, बट क्या होता था ना, बर्थडे पहले दिखते नहीं थे बिकॉज हम बाहर जाते थे. बर्थडे से वी यूज्ड टू गो इन अ रेस्टोरेंट टू हैव डिनर और समथिंग, बट बिकॉज इस टाइम हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे, सो वी मेड इट अ पॉइंट कि घर भी हम ऐसा डेकोरेट करें एंड मेक देम फील एज इफ वी आर, you know, it's something different. Create a different space in the same house by decorating or something. Otherwise, birthdays हमेशा से ही ऐसे मनते थे. So yeah, so it was always like that. But हाँ, इस बार ज्यादा दिख के आया because इस बार घर पे ही थे. Otherwise, हमेशा हम dinners पे या lunch पे बाहर जाते. Okay, Priyanshi wants to know how has Big Boss 12 changed your life? Big Boss 12 changed my life. I think it's made me a lot calm. Like it's made me calmer. Like I was very hyper. So it made me calm and in a nice way, of course. And it has made me realize a lot of values because जब अंदर होते हो आप and और जब because ये तो हमारे लिए तभी वो लॉकडाउन था ना. तो जो बिग बॉस चुके उनके लिए तो लॉकडाउन होता है, बट लॉकडाउन विद अननोन पीपल एंड यू डोंट हैव एन एस्केप, सो दैट लॉकडाउन इज डिफिकल्ट. बट यहाँ पे तो हम अपनों के साथ लॉकडाउन में थे, सो दैट वाज
still okay. So yeah, it has taught me a lot of things. Yeah, but most importantly, it has calmed me down. Someone wants to know your favorite 3 things that you did during the lockdown. Favorite 3 things that I did in lockdown. I really enjoyed baking. भले मेरे केक 3 बार के बाद अच्छे नहीं बनते थे, बट जो इनिशियल फेज था मुझे लगता मैं प्रो, मैं इसी के लिए बनी हूँ केक बनाने की. Like not kidding, but I really enjoyed baking. I really enjoyed doing haircuts, okay, for my parents. I think मैंने अपने mom dad दोनों का haircut करा, and वो भी मुझे अच्छा लग रहा है. मैं तो इसी के लिए बनी हूँ, कुछ भी अच्छा यही करना चाहिए, ऐसे ही लग रहा था. So yeah, I enjoyed doing haircuts for my mom, dad. I enjoyed baking, and I enjoyed working out at home. So basically, I never worked out at home. मेरे लिए मुझे लगता था वर्कआउट मतलब बाहर जाके जिम जाके यही सब है, या बाहर जाके स्टूडियो में डांस कर लो, this is workout. But I really understood that working out is at home is also so much fun. Putting on some routine on YouTube and following it, and you sweat the same amount like जो आप बाहर करते हो. And मुझे काफी वो भी बहुत enjoy किया मैंने working out. In fact, मैंने और रुबीना ने बहुत वीडियो कॉल्स पे वर्कआउट किया है साथ में. Thank you so much, Shrishti. Great talking to you. I had fun and I hope कि आपको भी मजा आया होगा, and आपके फैंस को भी. Thank you so much, and please take care of yourself. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.